So major types of bonding जो होती है हमारी, that we have completed last day. Metallic bonding was completed. Post that, what we have is, there is something called secondary bonding or intermolecular forces of attraction. ठीक है? Secondary bonding or intermolecular interactions. और what does it means is basically होता ये है कि atoms के बीच में, if we have two atoms and two atoms are interacting with each other, the interaction between them or attraction between them is termed as primary bonding, जो कि कोवैलेंट, आयनिक एंड मेटालिक बॉन्डिंग के फॉर्म में हमने देखा. एंड whenever a given molecule interacts with something which is in its vicinity, ये मॉलिक्यूल इसके साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो the forces of interaction are going to be not that great. ठीक है? Forces of attractions are not going to be that great. और अच्छा, इसमें एक चीज ये भी होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस ही काम करें. ठीक है? अगर ये दो चीजें बहुत क्लोज आ जाएंगी, ठीक है, if both of them are going to come very close to each other, तो इनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस भी काम करने लगते हैं. ठीक है? So therefore I have used the word intermolecular interactions. ठीक है? So we can take first point as the interaction between particles slash molecules of any system is known as secondary bonding or intermolecular interaction. These interactions are of two types. Number one, repulsive. रिपल्सिव कब होता है? जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज एक दूसरे के आ जाते हैं. दो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, if two of them are going to come very close to each other, then we are going to have repulsive forces acting
between them. और repulsive forces का origin क्या होता है? So the electron cloud of this, the outer electron cloud of this molecule and the outer electron cloud of the other molecule, ठीक है? They are going to repel each other and make them get separated once they try to come very close to each other. ठीक है? मान लो किसी रीजन से इस इंटरेक्शन को ये ओवरकम कर लिया, तो भी एक और लेवल ऑफ इंटरेक्शन रहता है, दैट इज न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन. ठीक है? किसी रीजन से ये मान लो ओवरलैप, मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बट फिर इनके अंदर बॉन्डिंग भी हो जाती है. तो मान लो किसी रीजन से ये दो मॉलिक्यूल्स मिल करके डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं. ठीक है? बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद मतलब व्हाट एक्चुअली मेक्स देम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब दोनों एक एक्चुअली अगर बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है और अट्रैक्शन इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन बिटवीन देम, तो ये इसकी बाउंड्री को ब्रेक करके और अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते रहना चाहिए था और ये दूसरी तरफ पेनिट्रेट करते रहना चाहिए था, राइट? सच दैट इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? या एटम्स एटम्स के भी इंटरेक्शन के टाइम पर इट डजंट हैपन. व्हाई? जस्ट बिकॉज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में there is strong repulsion which starts acting between them once their distance is decreased, right? Or their separation is decreased. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. So the interactions are of two type: repulsive. So the repulsive forces are incurred between molecules primarily due to a electronic repulsion between electron cloud of the molecules B. Internuclear repulsion between nuclei of two molecules. Molecules. This force keeps atoms or molecules
solid state not to get further easily compressed further. ठीक है, इज इट ओके? और एक तीसरा रीजन भी होता है, द steric bulk of molecules start restricting each other to mm, steric bulk of molecules start restricting. Hello, just repeating it. Steric bulk of molecules restrict each other to penetrate into one another. The second thing is repulsive forces among molecules or particles do not operate between them till they are not in they are they are not very close ब्रैकेट के अंदर almost in contact to each other. ठीक है, once they are very close or they have started touching each other, then only repulsive force will come into picture. The other type of force is attractive in nature. अब attractive forces जो है they have been bifurcated into multiple segments. ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट्स मतलब इनके कुछ कुछ पार्टीशंस होते हैं या टाइप्स होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। दो ब्रॉड टाइप जो होते हैं जिनमें इनको कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। सो वैंडरवॉल वॉल फोर्सेस के अंदर जो भी चीजें रहेंगी दे आर ऑल गोइंग टू अट्रैक्टिव इन नेचर। और वैंडरवॉल में एक सब टाइप होता है। अब वैंडरवॉल फोर्सेस को भी एक्चुअली हम लोगों ने बाइफरकेट किया हुआ है और इसका बी टाइप जो होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस वन। द फर्स्ट वन वैंडरवॉल फोर्सेस आयन। एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर वैंडरवॉल नहीं आता, मतलब एक सेकेंड रुक जाओ, इसको कैटेगराइज करने दो मुझे ठीक से। अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर सारे फोर्सेस को मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट वन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है,
और फिर मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा. The second one is going to be dipole dipole interaction. Third one is ion induced dipole interaction. Fourth one is dipole dipole sorry, dipole induced dipole induced dipole interaction. Last one is, fifth one is induced dipole induced dipole interaction. This is also known as, this one is also known as London or dispersion forces. Dispersion forces. ठीक है. और एक छठा टाइप भी रहता है, वो एक्चुअली इसका एक्सटेंशन होता है और सेकेंड वाले का, जो रिलेटिवली वीकर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं उनको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के फॉर्मेट में पढ़ते हैं. ठीक है. और एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग अलग से पढ़ते हैं. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नॉर्मल लेवल का रहेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. नॉर्मल लेवल मतलब उनके बीच की एनर्जी का वैल्यू जो होता है, हर बॉन्ड फॉर्म, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी होगी. जब एनर्जी 4 किलो कैलोरी पर मोल से कम का रहता है, वी कॉल इट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है. और जब इससे ज्यादा होने लगता है, जनरली 4 से 10 या 10 से ज्यादा, मतलब 5-6 से ज्यादा किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होने लगती है, तो वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा होता है, जैसे डाइपोल में हम लोग को पता है क्या होता है, एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, दूसरा एटम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये दोनों बॉन्डेड होते हैं. ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली इसकी तरफ खींची चली जाती है, तो ये डेल्टा निगेटिव हो जाता है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है. दूसरा डाइपोल इसी तरीके का रहेगा. ठीक है. ए एंड बी कंपार्टमेंट, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं. ये पॉजिटिव वाला एंड निगेटिव वाले एंड को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. अब इसमें ये होता है कि अगर जैसे ए एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स है, और इनके साथ में सबसे छोटा एटम जो कि हाइड्रोजन है, वो अगर जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे पोलैरिटी जो होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रॉन्ग लेवल की हो जाती है. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द पोलैरिटी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ठीक है.
और इस स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी की वजह से इसका इंटरेक्शन से बाजू में अगर क्लोरीन वगैरह भी आ गया या नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कोई भी रहा इनमें से, तो इट इज गोइंग टू स्ट्रांगली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, तो ये वाले एटम को हम लोग डोनर एटम, जहां से इस H को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एंड दिस H प्लस इटसेल्फ इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। और अगर H नहीं होता कोई और होता तो उसको भी एक्सेप्टर एटम बोलते हैं हम लोग, बट यहाँ पर H होता है एक्सेप्टर एटम, और ये इंटरेक्शन जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसको हमने एक नया नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन 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 बॉन्डिंग। ठीक है, सो विल स्टडी अबाउट इट। सो फिफ्थ वन के बाद सिक्स्थ वन, एक्चुअली सिक्स्थ वन को ना हम लोग यहाँ पे ना लिख करके इसी में ए और बी बना देते हैं। ठीक है, डायपोल, ये सिक्स्थ वन पे इसको इसलिए नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो ऑर्डर रहे ना, वो एक्चुअली एनर्जी के ऑर्डर में मैंने लिख रखा है, तो दैट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। ठीक है, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर, हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे नॉर्मल ए, नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हम लोग को ध्यान देना होगा, ये वाले को हमने बोला है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये तीनों को मिला करके एक और नई कैटेगरी बनती है, दिस कैटेगरी इज नोन एज, वेट, पहले मैं इसको बॉक्स कर लूं, डायपोल डायपोल, एक्चुअली इसके अंदर ना ये नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है ना, ये भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है, वो स्ट्रांग रहता है, और वीकर, सारे वीकर, रिलेटिवली वीकर लोगों का ये जो क्लब है ना, इसको हमने एक नया नाम दे रखा है। आयन डायपोल का इंटरेक्शन भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होता है, तो उसके लिए कुछ नया नाम नहीं है हमारे पास, बट ये अ, कमजोर लोगों का एक ग्रुप है, और इसका कुछ स्पेशल नाम हमारे पास है। इसका स्पेशल नाम होता है ये चारों का वैंडरवॉल, वैंडरवॉल फोर्सेस और अट्रैक्शन। इंटरेक्शन अब सही नहीं है क्योंकि अब सिर्फ वैंडरवॉल जहां पे आ गया, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन।
ठीक है। अब इसमें भी ये चीजें रहती हैं, ये जनरली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बीच में इंटरेक्ट करता है, ये वाला फोर्स। इसके इन्वॉल्वमेंट के लिए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जरूरत होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली जहां भी ऑपरेट करता है, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ डेंस सॉरी अ लिक्विड फॉर्म या फिर डेंस गैसेस। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑपरेशंस में जनरली लिक्विड फॉर्म हमारा इन्वॉल्व रहता है या फिर डेंस गैसेस सिस्टम रहता है, डेंस डेंस गैसेस रहते हैं। ठीक है। और बाकी सारे जो रहते हैं, जैसे नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी एक लेवल तक लिक्विड्स में ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, गैसेस में भी रहता है, लिक्विड्स में भी रहता है। बट यहां से जो चीजें हैं ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सारे के सारे प्राइमरली गैसियस सिस्टम में वर्क करते हैं। ये वाला लिक्विड में भी करेगा, गैस में भी करेगा। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन पे भी होगा एंड लिक्विड गैस इंटरेक्शन पे भी होगा। इज इट ओके? वेयर एज ये बाकी के तीन जो होते हैं, ये प्राइमरली गैस के इंटरेक्शंस में होता है। ठीक है, गैसियस इंटरेक्शंस में होता है। आयन भी होगा तो सिंगल पार्टिकल रहेगा, और ये सारे सिंगल सिंगल मतलब सिंगल सिंगल एज इन एक मॉलिक्यूल फ्लाइंग स्टेट में गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। सो दीज थ्री आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू वर्क इन gaseous system, gaseous system. Now I'll be explaining one by one. अच्छा, इन पांचों को, नॉर्मल वाले को, इन पांचों को एक साथ करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली करेंगे, इसके इम्पैक्ट्स थोड़े से स्ट्रॉन्गर रहते हैं, सो वी विल बी डूइंग इट सेपरेटली। ठीक है। बाकी के पांच को मैं समझा देता हूँ। So let us start with the first one. Okay. The first one being ion dipole interaction। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर आप लोग के पास स्पेस है क्या? डू यू हैव स्पेस ओवर हियर? नो सर। नहीं है? चलेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जहां पर लिखा है, यहाँ पर है क्या स्पेस? यहाँ पर तो होगा। और ये वर्ड, एक मतलब दो वर्ड्स नोट कर लेते हैं जनरली। वीक अट्रैक्टिव फोर्स। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर, जनरली वर्ड को हटा भी सकते हो, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। दे आर वीक फोर्सेस इन नेचर। Let us get back to ion dipole interaction. आयन डाइपोल इंटरेक्शन के केस में क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल जिसके दो सेगमेंट्स, एक डेल्टा पॉजिटिव और दूसरा डेल्टा नेगेटिव।
ठीक है, ऐसा सिस्टम is going to be called as ion dipole interaction. Sorry, this is going to be called as dipole. And suppose we are inserting an ion such as maybe एक सोडियम प्लस आयन को मैं डालता हूँ और एक क्लोरीन माइनस आयन को डालता हूँ NaCl में से तोड़ करके इन दोनों को, तो ऐसा डाइपोल, अब डाइपोल क्या हो सकता है, एक HCl डाइपोल हो सकता है, HCl गैस, या मे बी HBr गैस भी डाइपोल हो सकता है। ठीक है, fumes of HCl acid या fumes of HBr acid, they are good dipoles, gaseous dipoles, right? now अगर हम इनको छोड़ते हैं इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए और सोडियम एटम को इनके विसिनिटी में लेकर के आते हैं, सोडियम आयन को, एटम को नहीं, sodium ion को, तो what will happen, what type of interaction do we expect? Attractive. Will this positive entity will come close to Na or not, or No, will sir. it will not come, it will get rotated and this end will come closer to sodium such that uh, such that this type of formation takes place, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेंगे ये, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। uh, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सबका डेल्टा नेगेटिव इस तरफ रहेगा, राइट, और डेल्टा पॉजिटिव दूसरे तरफ। इज इट ओके? Yes, sir. और इन सब के बीच में क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये 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 ये, ठीक है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड सिमिलरली यहाँ पर भी रहेगा, बट यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में रहेगा, दिस विल बी डेल्टा प्लस सराउंडिंग डेल्टा प्लस, this is delta plus delta plus delta plus delta plus delta plus and so on and so forth. We are having this sort of interaction over here. Is it okay? Okay. Mm, when an ion is surrounded by polar molecules,
polar molecules align themselves such that such that the attractive force between ion and oppositely charged end of dipole starts operating. Next point is this is strongest among weak attractive forces. Forces in general. ये इन जनरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक दो एग्जांपल्स हैं ऐसे जहां पर कि दे आर so strong that they have almost covalent bond की एनर्जी उनके पास रहती है, ठीक है, बट दे आर एक्सेप्शनल. जनरल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू फॉल इन कैटेगरी ऑफ 20 एट मैक्स तक, 20 किलो जूल्स तक, किलो कैलोरी तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते. बट एक आध दो केसेस ऐसे भी हमको मिले हैं जिसमें 200 किलो कैलोरी, which is almost, I mean, it is kind of strongest of this thing. Like आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी एनर्जी मेनी टाइम्स 200 किलो कैलोरी नहीं हो पाती है. तो उतना ज्यादा अगर एनर्जी किसी भी बॉन्ड का है तो दैट इज एक्सेप्शनल और रेयर, ठीक है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड के एक दो एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पर की एनर्जी उतनी ज्यादा है इन्वॉल्व, बट अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी वीकर. वीकर और इससे भी वीक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन से ये होते हैं, क्या होते हैं, वीकर होते हैं, ठीक है. कुछ एक केसेस जो हैं एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके बाकी सारे वीक होते हैं. तो अब इन लॉट ऑफ ऑल द वीक्स दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है. द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन is inversely proportional to 1 by r cube. ठीक है. The second type is dipole dipole interaction. The dipoles or we can say the polar molecules
a system or of any system aligns themselves in a manner that that the opposite ends of dipoles are closer, making an attractive force to uh, operate between them. Okay? It's like डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, तो दूसरे वाले का डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और इस तरह का एक चेन सिस्टम काइंड का बनता जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी देयर. सो ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो होता है, दिस कम्स द एनर्जी ऑफ interaction is again inversely proportional to RQ. The only thing is, okay, the only thing नहीं, यहाँ पे कोई thing नहीं है. The point is this is going to be weaker than the first one. ठीक है, it is generally weaker than ion dipole interaction. The live example of this could be anything like HBr molecules interacting with another HBr molecule. ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, एक और HBr ले लेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव. ठीक है, the third type is ion induced dipole. This is yet another weaker force. This is weaker than, it is weaker force of interaction than dipole interaction. ठीक है, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो हम लोग को AlCl3 से मिलता है. अब यहाँ पर एग्जैक्टली AlCl3 जो होता है वो आयंस की तरह नहीं होता है. था तो AlCl3 का वो वैकेंट ऑर्बिटल जो है that can interact with, सपोज ClCl मॉलिक्यूल हमने डाला, तो ClCl मॉलिक्यूल के अंदर में क्या है, Cl मॉलिक्यूल अगर सिर्फ हम देखते हैं, will it be a polar molecule?
नो, No, sir. विल नॉट बी पोलर, क्योंकि ये दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो एग्जैक्टली सेम ही है ना। तो ये बॉन्ड जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो ना तो इसकी तरफ जाएंगे ना इसकी तरफ जाएंगे, एकदम बीच में रहेंगे। तो देयर विल नॉट बी एनी पोलैरिटी एज सच, ठीक है। बट ये मॉलिक्यूल जब AlCl3 के पास में आता है, अब हम थोड़ा सा लाइक इससे बाहर निकल के ऐसे सोचते हैं, एक मैग्नेट है मेरे पास, मैग्नेट के पास अगर मैं आयरन नेल को लेकर के आता हूं तो क्या होता है, नेल मेरा अट्रैक्ट होने लगता है इसकी तरफ। वाई? हाँ, अभी मैं वही कर रहा हूं, ये करने के बाद फिर लास्ट लाइन एज इन विच वन, आपके वाले कॉन्टेक्स्ट में जो बोल रहा था वो, या अभी जो बोला वो? हेलो, ओके, मैं Yes, yes. बोल रहा हूँ, वो हो जाएगा कवर, डोंट वरी। अभी मैं आता हूँ उस पे, वापस आऊंगा, ठीक है। ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ का, और इसके पास में हम लोग एक नेल को लेकर के आते हैं, आयरन को लेकर के आते हैं, आयरन का एक बार लेकर के आते हैं। व्हाट विल हैपन, they will start attracting each other, oh sorry, this bar will get attracted towards the magnet, right? How does this happen? We know that magnetism gets induced in a temporary magnetism gets induced in it. यहाँ पर ये नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेता है, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट कर लेता है, और इसकी वजह से ये अट्रैक्ट होने लगता है इसकी तरफ। जिनमें इस तरह का इंडक्शन नहीं हो पाता है उनको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जिनमें इंडक्शन होता है उनको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, राइट? ऐसा कैटेगराइजेशन हमने कर रखा है ना। सेम Yes, sir. सेम फेनोमेना। तो ये क्या है, ये डाइपोल इसके अंदर नहीं है अभी तक फिलहाल, जब तक ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है इसके पास कोई डाइपोल नहीं है। लेकिन द मोमेंट इट कम्स इन कांटेक्ट विथ AlCl3 which has a vacant orbital, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने का मतलब क्या हुआ, इसके पास टेंडेंसी होगी कि ये कहीं पर भी लोन पेयर मिल रहा है तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो द मोमेंट अ फ्लाइंग क्लोरीन मॉलिक्यूल will come in close vicinity to this molecule, ठीक है, ClCl molecule will come in close vicinity to AlCl3. What are we going to have? Donation of lone pair or interaction between the vacant orbital and the lone pair of Cl. अब ये होने की वजह से क्या होगा कि now the bonded electrons will get shifted towards this, ठीक है, it will get shifted towards this, क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये इस वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ डोनेट होने लगा, तो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच विल डेवलप हियर। उसको काउंटर करने के लिए लोन पेयर जो है, सॉरी बॉन्डेड पेयर जो है, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस क्लोरीन, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या होगा, दिस एंड विल बिकम डेल्टा पॉजिटिव, और ये इंटरैक्ट बेसिकली, यहाँ पर कुछ डेल्टा पॉजिटिव होता नहीं है यहाँ पर, तो सॉरी डेल्टा निगेटिव कुछ होता नहीं है, बट नोशनल डेल्टा निगेटिव हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर गया तो बॉन्ड पेयर इसकी तरफ शिफ्ट किया, यानी ये लो, अगर हम कंसिडर ये करें कि ये फुल्ली नहीं ट्रांसफर हुआ है, अभी भी इसके डोमेन में है, इसके डोमेन में है, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट किया, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट किया, इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और फिर इसने डोनेट किया इसको, राइट? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड, यहां पर अब हुआ क्या, Cl मॉलिक्यूल जो कि पहले से इसके पास कोई डाइपोल नहीं था,
इसमें हमने डाइपोल इंड्यूस कर लिया, और इंड्यूस होने के बाद देयर इज अ इंटरेक्शन और अट्रैक्शन बिटवीन दिस डाइपोल एंड दिस, नॉट एग्जैक्टली आयन बट या आयन लाइक स्पीसीज, ठीक है। आयन भी हो सकता है, Al3+ अगर डायरेक्टली रख दे Cl के कांटेक्ट में, वी आर स्टिल गोइंग टू हैव दिस, ठीक है। सारे डी ब्लॉक वाले जो हैं वो हैलोजन गैसेस को पोलराइज करते हैं, वेदर इट इज Al3+ हो या Fe3+ हो, कॉपर वगैरह भी करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, बट ये दोनों तो प्रोमिनेंटली करते हैं। CO2+ हो, ये भी करता है। तो दे आर गोइंग टू पोलराइज दीज गैसेस, ठीक है, एंड दैट पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन और इंड्यूस्ड डाइपोल। एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आई हम लोगों के? लेट अस टेक अ नोट। In these, sorry, in this interaction, this form of interaction, a non-polar molecule is polarized in presence of vacant orbitals or, or cationic or neutral basis to create a dipole. Create a induced dipole. Example, Cl2 in AlCl3 or Br2 in AlBr3, etc. Here the energy of interaction, energy of interaction is R⁶. अच्छा, एक चीज यहाँ पर सिर्फ और ऐड कर दो, यहाँ पर energy of interaction is directly proportional to 1/r³ for static polar molecules.
ठीक है, और this is proportional to 1 by r to the power 6 if it is for rotating polar molecule. Rotating polar molecule, ठीक है, ये एक थोड़ा सा एडिशन और कर लेना होगा आप लोगों को. Noted this thing, this addition. Yes, sir. Okay. So this was the third one, ion induced dipole. Then we have dipole induced dipole. ठीक है, dipole induced dipole interaction. See, this is weaker than ion induced dipole. ठीक है, और इसका भी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो होता है, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, that is proportional to 1 by r6. अगला इंफॉर्मेशन ये होता है, बेसिकली सेम फेनोमेना ऑफ इंडक्शन हो रहा होता है. द ओनली थिंग इज वहां पे इंडक्शन जो था वो आयंस के थ्रू या वैकेंट ऑर्बिटल के थ्रू स्टार्ट इनिशिएटेड था. यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड बाय अ डायपोल विच इज प्रेजेंट इन विसिनिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, कोई एक डायपोल है, पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के आजू बाजू में बैठा हुआ है, एंड इट विल इंड्यूस दैट इफेक्ट. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इसमें कुछ नया इंड्यूस बताने के लिए होता नहीं है, क्योंकि है नहीं कुछ. ठीक है ना. ओनली थिंग इज आई विल टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट. वन से ओके. Yeah, the example we can take is HCl being a polar molecule can induce Cl and Cl molecule. ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके का होता है कि ये नेगेटिव एंड जो है इस वाले एंड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है दूसरे वाले की तरफ, और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, सो if they are far apart, they are going to be like this, maybe like this. ठीक है, और the moment they are going to come closer, HCl and Cl is more closer to it now. This will become delta negative, this will become delta positive, this is delta negative, and this is delta positive.
how it happened? Simply happened by distortion of electron density. ठीक है, ये excess electron density जो है, that pushed the electron density on this chlorine towards the other end. ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव हो गया तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, the non-polar molecule like Cl2 or Br2 being polarized in presence of polar molecules like HCl, HBr और even H2O. ठीक है, H2O में भी ये पोलराइज हो जाता है. ठीक है, और the fifth one is something in which we have to like understand something, that is सर एक मिनट ऊपर देखिए. हाँ, डन सर. induced dipole, induced dipole interaction. Okay. Also known as London forces or dispersion forces. ठीक है, लंदन फोर्सेस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम फ्रिज लंदन. ही वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग टू अस. ऐसी कोई चीज होती है. ठीक है, और दिस इज weakest force of in attraction among molecules. ठीक है, any non-polar molecule like H2, Cl2, even N2 gets polarized, gets temporarily polarized, temporarily polarized due to shifting of due to momentarily shifting of momentarily
thing of electron cloud, or we can say electron cloud in a molecule towards one end. What does this mean is, जैसे देखो ये हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों बॉन्डेड हैं। अब एमओटी में कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे वेव कॉन्सेप्ट एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन वेव की तरफ रहता है, वैसे ही एमओटी ये सजेस्ट करता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में ही रहता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यही तो बताया है ना, राइट। वेव के फॉर्म में इंटरेक्ट करता है और वेव के फॉर्म में ही वो थ्रू आउट रहता है। तो ये तो लाइक वीबीटी का कॉन्सेप्ट था ना कि इस तरीके से ओवरलैपिंग होगा, और इसी को हम दिखाते रहते हैं ऑलवेज। बट रियलिटी ये है कि ये वेव्स की तरह मूव कर रहा है। ठीक है, अब एक टाइम पे हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम पर ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मेजर पोर्शन जो है वो इस तरफ रहे, दूसरे मोमेंट पे वो इस तरफ आए। ठीक है, तो जिस मोमेंट पर ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट किया, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन उनके अंदर में है मॉलिक्यूल के अंदर में, तो पूरा पूरा शिफ्ट हो गया। अदरवाइज Cl2N2 में पूरा नहीं शिफ्ट होगा, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा वही एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ मूव करेगा एक एंड पर। बात समझ में आ रही है? तो जब इस एंड पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया तो ये डेल्टा निगेटिव एंड हो जाएगा, और ये एंड क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव एंड हो जाएगा। इसी इंस्टेंस पे दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर इसके बाजू में आ जाता है तो व्हाट विल हैपन, इसका डेल्टा पॉजिटिव इसके इस एंड को डेल्टा निगेटिव के फॉर्म में पोलराइज कर पाएगा, और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ये होना एक काइंड ऑफ बहुत मोमेंटरली टास्क होगा, और इसके साथ ये वाला होना भी एक बहुत ही मोमेंटरली टास्क होगा। दोनों ही बहुत स्मॉल मोमेंट का टास्क होएगा। ठीक है, और इसका रिवर्सल भी बहुत फास्ट होता है, तो इसका रिवर्सल भी उसी रेट पर होएगा। दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन जो होता है वो वीकेस्ट नेचर का होता है। ठीक है, अब हमको इस बात का पता कैसे चला कि ये एग्जिस्ट करता है? तो इसका पता लंदन को इस चीज से चला कि हाइड्रोजन ही फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट H2 molecules, ठीक है, has 2% ionic character। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि H2 being non-polar molecule, how can it have ionic character? प्योर कोवैलेंट बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल के अंदर में फॉर्म कर रहा है उसमें आयनिक कैरेक्टर कैसे हो सकता है? दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू एक्सपेक्ट। ठीक है, एंड दैट टू कि हाइड्रोजन को और किसी के विसिनिटी में डाला नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिया है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, और ये क्या है? ओके, H2 molecule has 2% ionic character. Now, if H2 molecule has 2% ionic character, this can be explained only through this particular mechanism. There was no other mechanism through which it can be explained. Later on, it was found to be कि हाँ, ये जो proposition है हमारा, this is in line with various other things which were found later on. ठीक है, so this was accepted as one of the reasons
for various such things like any character in H2 molecules, interaction between gaseous molecules like nitrogen, रियल गैसेस नहीं है, सॉरी आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, उनके बीच में इंटरेक्शन रहता है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती हैं, और वो अट्रैक्टिव फोर्स का ओरिजिन क्या है, यही ये जो है बिहेवियर, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, यही बिहेवियर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रियल गैस नेचर, ठीक है ना? एम आई मेकिंग सेंस? अच्छा, यस सर। वन मोर थिंग, सी बाकी ऊपर की चीजें जो है, जैसे ये इंड्यूस्ड डाइपोल जहां पर भी आ रहा है ना, इंडक्शन वाले, ये वाले सारे के सारे हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेंगे, ठीक है? इंड्यूस्ड वाले जो फिनोमेना है ये हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेंगे, दे कैन नेवर बी रिपल्सिव, ठीक है? बट यहाँ पर जब हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं या आयन डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मोमेंटली रिपल्सन्स भी पॉसिबल है, ठीक है ना? परमानेंट रिपल्सन पॉसिबल नहीं है, बट मोमेंटली रिपल्सन्स पॉसिबल है। आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल में मोमेंटली रिपल्सन्स आर पॉसिबल। एम आई मेकिंग सेंस? मोमेंटली मतलब छोटे इंस्टेंस के लिए ये निगेटिव भी तो एक साइड में हो सकता है ना, तो फिर रिपल्सन Yes, काम sir. करेगा, ठीक है? बट बाकी सारे केसेस में जहां पर भी इंड्यूस सिस्टम आ गया है, ठीक है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ओनली अट्रैक्टिव, क्योंकि इंडक्शन का मतलब ही होता है, इंडक्शन होगा तो अट्रैक्शन होएगा, ठीक है? एम आई मेकिंग सेंस? ओके, Yes, sir. और let us have a look at few questions related to it and the way we explain it. Arrange noble gases in increasing order of their boiling point. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. ठीक है? So the order is going to be increasing in this order. I mean, molecular weight increases in atomic weight. Molecular weight इनका होता नहीं है, atomic weight increases in this order, ठीक है? और जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि वैंडरवाल फोर्सेस एटॉमिक वेट इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा होगा, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है कि एटॉमिक वेट ही इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इंक्रीजिंग। अब वो इंक्रीज करने से बेसिकली इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन जो है, induced dipole interaction between helium and helium atom, neon atom, argon atoms are going to increase, right? जितना ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होएगा उतना ज्यादा एक तरफ शिफ्टिंग होने पर पोलैरिटी होएगी, स्ट्रॉन्गर पोलैरिटी। am I making sense? So van der Waal force, especially the London force, वैन डर वाल में भी लंदन वाला इसमें ऑपरेटिव होगा। London force increases in this order,
and therefore our boiling point will increase in this order only. Is it okay? Yes, sir. Boiling point of ICl is higher than Cl2. Explain. See, there are two reasons. First is I पहला वेट क्राइटेरिया होता है मॉलिक्यूलर weight of ICl is higher than Cl2. दूसरा चीज क्या है? तो अगर ये हायर है तो मॉलिक्यूलर मोशंस क्या होगा? जो ज्यादा हेवी होगा उसका कम होगा मॉलिक्यूलर मोशन वाइब्रेशन, एंड मॉलिक्यूलर मोशन एंड वाइब्रेशंस जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है बॉइलिंग फेनोमेना का। ठीक है, जो मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव करते रहेगा उसके बॉयल होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। एम आई राइट? बल्कियर मॉलिक्यूल सेम Yes, sir. टेम्परेचर पर कम वाइब्रेट करेंगे या कम मोशन उनके पास का रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से दे आर गोइंग टू हैव व्हाट? लोअर स्केपिंग टेंडेंसी। उनकी वेलोसिटी कम रहेगी, स्केपिंग टेंडेंसी कम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा सेम टेम्परेचर पर, बट जिसका मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम रहेगा तो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, अरे बॉइलिंग के टाइम पर होता है क्या? सरफेस के मॉलिक्यूल्स कूद कूद करके बाहर भाग जाते हैं क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक हल्का मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है एक भारी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, गिवन दैट बोथ ऑफ देम हैज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, and that's how the heavier one is going to have, बेसिकली हेवियर वन को बाहर भगाने के लिए क्या चाहिए करना होगा? हम लोग को और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी होगी सो दैट उसके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी गेन कर ले वो, सो दैट वो भाग पाए। राइट ना? तो molecular weight of Yes, sir. ICl is higher than Cl2. The second reason is ICl is a polar molecule with dipole dipole interaction. ठीक है, making it making its boiling point higher. ठीक है, और Cl2 के अंदर में क्या है? इज अ नॉन पोलर। एक सेकेंड रुक जाओ, देख होता है। ठीक है ना? So Cl2 is bounded by, being a non-polar molecule, it is bounded by weaker London forces. Yes, yes, yes. Okay. The next question is arrange the isomers of pentane in increasing order of boiling point. और ये कौन कौन से हैं? We can have तीन पेंटेन है तो पांचों कार्बन एक लाइन में। दूसरा हो सकता है चार एक लाइन में हो और एक किसी पर साइड में जुड़ा हुआ हो। तीसरा हो सकता है ये वाला, एक एक दोनों पर। तीनों में पांच है तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रांच है। ठीक है,
यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं और ये स्ट्रेट चेन है, सिंगल, नो ब्रांच, 0 ब्रांच। ठीक है, स्ट्रेट चेन। नाउ यहाँ पर रूल ये रहता है कि as branching increases, branching increases implies surface area, surface area decreases. See, same volume, same volume, सेम वॉल्यूम अगर एक सिलेंडर, एक क्यूब और एक स्फेयर का लेते हैं हम, तो सरफेस एरिया सबसे कम किसका रहता है? स्फेयर का रहता है। हैव यू हर्ड? ऐसा कभी सुना, देखा या सॉल्व किया है क्या हम लोगों ने? वॉल्यूम सेम हो, ठीक है, तो क्या होगा? सरफेस एरिया सबसे कम किसका रहेगा? स्फेयर का। नहीं सॉल्व किया है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन जब आप लोगों को बताया जाएगा प्रॉपरली, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में वी हैव टू डू इट। सो अभी के लिए जस्ट मान लेते हैं कि स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा हम लोग सिमेट्रिकल जोन में पहुंचेंगे। दैट मीन्स स्फेयर के आसपास पहुंचेंगे, सरफेस एरिया कम होता जाएगा। सो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और सरफेस एरिया डिक्रीज करता है तो वैंडरवॉल इंटरेक्शन जो है ये भी डिक्रीज कर जाता है। वैंडरवॉल अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये इंटरेक्ट करने पर ही तो, क्लोज आने पर ही तो काम करता है ना। जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड रहेगा उतना ज्यादा काम करेगा, राइट? एंड लास्टली दिस डिक्रीजेस बीपी। ठीक है, दिस वन इज नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, दिस इज isopentane, and this is neopentane. So finally the order is going to be normal or n-pentane highest, followed by iso, followed by neo. And the same rule is applied to all the hydrocarbons. अरे पेंटागोनल में, अच्छा 5 को ऐसे तुम अरेंज करने की सोच रहे हो? मतलब पेंटागन में बताओ, ये कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा सरफेस एरिया? सर कम होगा। कम हो जाएगा, ओके। वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है दीप? एम आई मेकिंग सेंस?
ओके, चलो लेट अस क्लोज टुडेज लेक्चर एट दिस पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डीलिंग विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड